Hey there! Hearing about AI everywhere, but not sure from where to start? Feeling overwhelmed by tons of YouTube videos, but do not know which one to click upon? Well, you just found the right one. I am Vedant, and this is AI Unfiltered, where I dive deep into the world of AI from the ground up without any fluff. Join me on this journey to make sense of AI and bring the best out of it. You are watching Vedansha Presents AI Unfiltered. After completing the last two episodes, we now have the knowledge of some of the terminologies used in the world of AI. Now, as I told you in the last episode that I would be discussing about the insights that I gathered when I watched the podcast of Aravind Srinivas with Lex Friedman. So in today's episode, I would be briefing you about it, and also I would be briefing you about the things that I did in the last week and what you should do to take a step further in the world of AI. So let's start. First of all, there were a few things which the CEO of Perplexity told us on how Perplexity works. Now, there would be some terms that you and I would not understand because we have actually not studied or discovered about it yet. But as we will climb the ladder of learning in the world of AI, at that time we will understand the meaning of these terms. First of all, he told that he used RAG, which is Retrieval Augmented Generation, in while making Perplexity. Also, he took care of hallucinations. Hallucinations is a term given to the fact that when AI generates incorrect or irrelevant output. Also, what he told that AI at this point has just the ability to work on prompts. And once it starts to become curious on its own, it would behave like humans. And the main thing which he focused on this whole podcast was that humans should cater curiosity rather than just learning what they are taught. तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द पॉडकास्ट. सो इतनी सारी चीज़ों के बाद हमें अभी ऊपर से अपनी प्लेटर का व्यू पता चल गया है, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक दैट प्रोडक्ट एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आर देयर इन अवर प्लेटर. अभी बेसिकली एआई के दो यूजेस हो सकते हैं. या तो आप एआई को यूज करके कुछ दूसरा काम करो, या तो आप एआई को कैसे बनाते हैं उससे अपनी क्यूरियोसिटी को क्रिएट करो और कुछ अलग अलग चीज़ें बनाओ, राइट. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन द सेकेंड थिंग, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो आजकल सब कर रहे हैं, चैट जीपीटी और सबका यूज करके अपने अपने काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, और करने भी चाहिए क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आपके साथ है तो यू शुड यूज इट. तो सबसे पहले अगर स्टेप वन ले उस सेकेंड चीज़ में, तो हमारे पास आएगा कि हम एआई को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो कोई भी चीज़ को अगर ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा, पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि वो चीज़ एक मशीन है. तो उसको अगर ऑटोमेट करना है तो हम लोग को मशीन लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, और मशीन लैंग्वेज में जाने के लिए हम लोग को कोड सीखना पड़ेगा, राइट. ऑल्सो ऑब्वियसली इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट पाइथन एंड इट्स रेलिवेंस इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, राइट. सो मेरे को भी पाइथन नहीं आती और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको भी नहीं आती होगी. तो सबसे पहले हम चालू करेंगे पाइथन सीखना. जैसे कि हमारे कॉलेज में हम लोग को सी और सी प्लस प्लस सिखा रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को सब सिखा दिया और फिर बाद में प्रोजेक्ट्स करने को बोले, तो मेरे को वो थोड़ा ऑड लग रहा था. सो because of that, what I did when I was learning Python is side by side I started doing some simple projects like making a contact list management system. वो लग रहा होगा भारी है contact list management system, उसमें कुछ नहीं है. लोगों के कॉन्टैक्ट एक जगह सेव करना है, प्रिंट कराना है, तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें. और एक टिक टैक टो बनाने की थी, वो भी नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट्स और इफ एल्स लूप यूज करके बनाने की थी. तो वो जो मैंने प्रोजेक्ट्स जहाँ से किए उसकी भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी है CS50 के प्लेलिस्ट पर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन. तो मैंने लास्ट वीक में वो डिस्कवर किया एंड एकदम बेसिक से उन्होंने कवर किया. एक फंक्शनल पैरामीटर से लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक उन्होंने सब कवर किया है. पाइथन कुछ नहीं है, बेसिकली उसको ह्यूमंस के साथ कैसे इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं वैसी एक लैंग्वेज बनाई गई है. जैसे अगर आप C++ में देखोगे तो प्रिंट के लिए आपको सी आउट यूज़ करना पड़ता है और इनपुट के लिए सी इन यूज़ करना पड़ता है. पाइथन में ऐसा कोई अलग टर्मिनोलॉजी नहीं है. प्रिंट मतलब प्रिंट, इनपुट मतलब इनपुट, और नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो. तो पाइथन की वो एक खासियत है और इसलिए हम लोग अभी पाइथन सीखना चालू कर रहे हैं. तो लास्ट वीक मैंने पाइथन चालू की, उसको अच्छे से सीखा. उसकी सीरीज में शायद 9 या 10 वीडियोज है, 1.5-2 घंटे के. तो लास्ट वीक मैंने वो सब देख लिए थे
और उसमें अलग अलग जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरीज है, सेट, मैप, उन सब के बारे में बोला गया है और कैसे आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। फिर एक अच्छे सा वो भी है कि अगर आपको कोई एक थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करना है तो आप उसके लिए कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरीज के बारे में भी बताया गया था उसमें कि अलग अलग लाइब्रेरीज कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पाइथन की एक बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइब्रेरीज के मतलब ऑलरेडी आपको सब चीज़ें मिल रही है, आपको खाली वो इम्पोर्ट करनी है और कोड करना है। एंड देर आर सम टर्मिनोलॉजीज लाइक रेगुलर एक्सप्रेशंस, कि जैसे कि मान लो कि आपको कोई ईमेल एंटर करना है, ठीक है, तो अभी गूगल फॉर्म्स में आपको अगर अपना ईमेल एंटर करना है तो गूगल फॉर्म कैसे वैलिडेट करेगा कि ये मतलब ईमेल का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। मतलब हम सबको पता है वैसे ईमेल कैसे लिखा जाता है, पहले कुछ वर्ड्स हो गए, फिर @ का सिंबल होगा, फिर कुछ वर्ड्स हो गए, फिर .edu या .gmail.com या .org ऐसा कुछ होगा, तो डॉट होगा वहाँ पे। तो वो कैसे लिखा जा सकता है पाइथन में, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में कैसे करते हैं, क्लासेस बनाएंगे और फिर क्लासेस के अंदर वो सब मेथड्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास मेथड्स और सब उसमें डिफाइन कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हो पाइथन में। तो बट मैंने जो यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट देखी थी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो और अपने तरीके से भी अलग अलग कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ नया मिले जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट? तो हम दोनों साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या करेंगे। अभी जितना हम लोग को आगे दिख रहा है हम लोग उतना ही आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 करके पूरा रोड कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।